Hi. So in the last lecture, I have given you a list of products and I hope you have decided on which product you want to create your affiliate website. I also showed you how to buy the domain and the web hosting plan from the link I have provided to you. But if still you are facing any kind of issue or you have any kind of doubts in your mind, don't worry, just write to us. Me and my team will be there to help you. For now, I welcome you to the 16th lecture of this amazing digital marketing series. अभी तक हमने वेब होस्टिंग प्लान भी ले लिया है एंड हम अपने डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल भी कर चुके हैं. So first of all, we already know this that with this Bluehost web hosting plan, we have got the SSL security for free. But right now, if we are accessing our website like this, then we can see that our website is opening in not secure mode, which means that the SSL security has not been activated yet. So जब आप Bluehost से hosting plan buy करते हो, you have to follow a certain procedure to activate the SSL security on your website. You have got the SSL certificate, but right now you have to follow a basic certain procedure to activate that security. Let me show you how you can do that. You have to click here on Advanced. And then after coming over here to this web page, you need to scroll down like this, and after you reach this tab, the security tab, you need to click here on SSL TLS status. So here you will see this kind of screen, and here you need to select every domain. And after selecting every domain over here, you need to click on include 9 domains during auto SSL. So this will activate the SSL security on your website. And it's gonna take some time, like maybe an hour or maybe like 40 to 50 minutes. So अभी एकदम से activate नहीं होगा. अभी जब install करोगे तो it will take like an hour or maybe 2 after that. So you have to wait for that. Right now, this is all we need to do to install the SSL security. So we can close this. It will get automatically installed now. And for now, let me take you to the our WordPress backend, our website's backend precisely. So for that, you need to enter a slash over here, / and then enter wp-admin admin, and then click on enter. So यहाँ पर हमें वो यूजर नेम और ईमेल डालना है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हमने रजिस्ट्रेशन की थी, जब हमने एक ईमेल डाला था, राइट. वो सेम ईमेल अभी हमें दोबारा यहाँ पर डालना है. So I'm going to enter my email. And the password which I have created. And then click on login. So that's all. This is the dashboard of our website backend. So इस dashboard के नीचे you can see there are multiple elements which you can use to change the front end of your website. आप जो भी अपनी changes करते हो, major changes करते हो front end पर, इन सभी elements का use करके करते हो. You can also collapse this menu by clicking over here. So इन सभी elements का क्या purpose है, आप post कैसे add करते हो, media का use कैसे करते हो, pages कैसे create करते हो, ये सब कुछ हम सीखेंगे. But before that, let me tell you how to install the GeneratePress theme which I've given you with the license key. So for that, you have to click here on Appearance, then click on Themes. Then over here you need to click here on Add New button. Then click here on Upload Theme. So now you have to choose the file from your system wherever you have downloaded it. So I'm doing it right now from my own system. Then after selecting the file, you need to click here on Install Now. So it's gonna take like 1 or 1.5 minutes, I think. No, it got just installed.
So the theme is installed right now. I just have to click here on activate. And after this, I've also provided a premium plugin of GeneratePress. You also have to install that plugin. So again, we need to click here on not the themes now click here on plugins. And after clicking on plugins, you have to click here on add new. Now click here on upload plugin. Then again choose file. Now choose the plugin file. And now click here again on install now. Click here on activate plugin. And now we just need to reload our website and see what changes we can see right now. So now as you can see, the whole look have been changed, right? So here we have got the GeneratePress installed on our website. Here we can see powered by GeneratePress. So that's how you can install any theme, but I would really prefer going with the GeneratePress because it's very light and it's gonna be very easy to operate for you as a beginner. And आप बहुत सी changes कर सकते हो and it's very easy. It gives a very attractive look to your website. And सबसे important बात ये है कि आपकी website की speed को बहुत fast रखती है, which is a very important parameter in terms of SEO. Now after this, जब हमने plugin install कर लिया है GeneratePress का premium plugin भी install कर लिया है, now we need to configure it. And make sure आप इस plugin को install ज़रूर कर लें because this is how you're gonna actually use the premium feature of the GeneratePress theme. Otherwise जो free features हैं आप वो use कर पाओगे. So after you will install the plugin, you will see after you click on install plugins over here, तो आपको ये सभी plugins यहाँ पर दिखेंगे. ये सभी वो plugins है पहले जो हमने deactivate कर दिए थे in the Bluehost panel, जो मैंने आपको बताया था automatically Bluehost हमें साथ में देता है. तो ये सभी अभी बाकी deactivated हैं. So अभी हमने GP Premium को install किया है, so it is activated. So यहाँ पे हमें सबसे पहले भी यहाँ पे configure पर क्लिक करना है. then उसके बाद ये सब मॉड्यूल्स हैं जो अगर हम चाहें तो अपनी वेबसाइट पर एक्टिवेट कर सकते हैं. So हम जितने कम मॉड्यूल्स एक्टिवेट करेंगे उतनी फास्ट हमारी वेबसाइट रहेगी. But we will activate what we need the most to actually build an attractive and a good looking website. So अभी हमें कलर्स चाहिए, ब्लॉक चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, मेन्यू प्लस, सेक्शंस, then typography, also the backgrounds. So then we need to click on bulk actions, then activate, then apply. So this will activate all of these modules to our website now. And यहाँ पर हमें लाइसेंस की डालनी है. लाइसेंस की मैंने आपको जब उसका GeneratePress की थीम प्रोवाइड की थी और साथ में प्लगइन प्रोवाइड किया था, उसके साथ एक लाइसेंस की भी मिलेगी आपको. तो लाइसेंस की आपको यहाँ पर डालनी है. मैं अपनी की यहाँ पर डाल रहा हूँ. So here we need to enter the license key like this, and make sure you check this box to receive beta updates, and then click on save. So it's done now, and now let's start the tour of our WordPress backend panel. So सबसे पहले तो हम पोस्ट के अंदर देखते हैं कि पोस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं. तो पोस्ट के जब आप ऊपर होवर करोगे, होवर करने के बाद आपको क्लिक करना है ऑल पोस्ट के ऊपर. देन हेयर यू कैन सी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दिख रही है. तो जितनी भी पोस्ट आप क्रिएट करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखती हैं. सो यहाँ पर क्लिक करके यू कैन एडिट दैट पोस्ट, क्विक एडिट भी कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करने के बाद. एंड देन यू कैन ऑल्सो डिलीट द सेम पोस्ट ओवर हेयर, एंड यू कैन ऑल्सो व्यू द सेम पोस्ट. सो जितनी भी पोस्ट आप क्रिएट करोगे वो सभी पोस्ट आपको इस सेक्शन के अंदर दिखेगी. देन यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप ऐड न्यू पोस्ट के पेज पर चले जाओगे. बेसिकली इसी पेज पर आने के बाद आप
कोई पोस्ट क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेब पे कुछ भी हेडिंग दे देता हूँ, जैसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे कंटेंट लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर सकता हूँ। बट अभी हम पोस्ट कैसे लिखनी है वो डिस्कस नहीं करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि पोस्ट क्रिएट कहाँ से होती है, किस इंटरफेस से आगे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप पब्लिश पर क्लिक करते हो, देन पोस्ट क्रिएट हो जाती है। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि पोस्ट क्रिएट कहाँ से करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फॉर नाउ लेट अस सी दी कैटेगरीज। तो कैटेगरीज क्या होती हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वर्डप्रेस में कैटेगरीज आप यहाँ पर आकर क्रिएट करते हो, कैटेगरी को नेम करते हो, देन स्लग मतलब उसका जो यूआरएल होता है उसको यहाँ से क्रिएट करते हो। अभी हम क्रिएट करके देखेंगे नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिएट होती कहाँ से है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कहाँ से क्रिएट होती है, ठीक है। जब क्रिएट कर दोगे उसके बाद वो कैटेगरी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं टैग्स। टैग्स के लिए जब हम पोस्ट बनाएंगे मैं आपको तभी बता दूंगा टैग्स का, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि टैग्स होते क्या हैं। तो टैग्स को हम तभी डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं मीडिया। तो मीडिया पे होवर करने के बाद हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं एंड हेयर जो भी हम डेटाबेस के अंदर अपनी इमेजेस डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, जो भी डेटा हम डालेंगे, मल्टीमीडिया डेटा डालेंगे, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, तो वो सभी आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर। एंड यहाँ पर क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करके या फिर डायरेक्टली अब यहाँ पे क्लिक करके भी इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट फाइल्स से फाइल अपने कंप्यूटर में से फाइल सेलेक्ट कर लो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो वो डेटा यहाँ पर आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा एंड वो दिखेगा कहाँ पे, लाइब्रेरी में दिखेगा। एंड ऑल्सो जब आप पोस्ट बनाते हो तो पोस्ट के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलता है डायरेक्टली वहाँ पे इमेजेस डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट वो इमेजेस जो आप पोस्ट के अंदर लोड करते हो, कंटेंट के अंदर लगाते हो, वो सारी इमेजेस आपको लाइब्रेरी के अंदर भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद पेजेस। पेजेस बेसिकली जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं वैसे हम पेजेस क्रिएट करते हैं एंड ऑल पेजेस के अंदर वो सभी पेजेस हमें यहाँ पे दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐड न्यू पर जब आप आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप ऐड न्यू पर यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एंड मोरोवर पोस्ट और पेज में कई लोगों को सोचते हैं कि क्या फ़र्क होता है। तो पेजेस बेसिकली स्टैटिक पेजेस होते हैं जो आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, जिसमें जैसे अबाउट अस पेज हो गया, प्रिवेसी पॉलिसी का पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन का कोई और पेज हो गया, डिस्क्लेमर पेजेस हो गए, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। तो ये आप ज़्यादा चेंज नहीं करते, तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको आप पेजेस की फॉर्म में स्टोर करते हो और जब आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करना है, तो वो पोस्ट की यहाँ पर जाके ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करके पोस्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। एंड कमेंट्स के अंदर आपको कमेंट्स दिखते हैं, जो पोस्ट के अंदर जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो कमेंट करेंगे। उन कमेंट को आप अप्रूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसे पेंडिंग में रखना है पेंडिंग में भी रखा रहने दे सकते हो, ठीक है। अपीयरेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज अपीयरेंस बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसके एक पूरा लेक्चर जाएगा इसके ऊपर, ये अपीयरेंस में कैसे क्या कुछ कैसे वर्क करता है, क्योंकि अपीयरेंस ही बेसिकली आपके फ्रंट एंड की जो लुक है वो सारी चेंज होती है। प्लगइन्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लगइन्स के अंदर बेसिकली जो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हो वो आपको दिखते हैं और वो इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर दिखते हैं और ऐड न्यू पर क्लिक करके आप नया प्लगइन ले सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो या नया प्लगइन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। लेट मी शो यू वो कैसे कर सकते हो। लेट मी शो यू कि वो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हो आप। सो यू नीड टू क्लिक हियर ऑन ऐड न्यू। Here to add a plugin, the first way is which I've shown you earlier कि जब आपने जनरेट प्रेस प्रीमियम का प्लगइन इंस्टॉल किया था, by following the same way आप कोई सा भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। You just need to click on upload plugin and select the file from your system and then click on install now. The other way is आप प्लगइन को सर्च कर सकते हो by coming over here. For example, if I want to install a plugin named as Elementor, it's a page builder a plugin. So I just need to search for Elementor over here and then मुझे यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पर एंड देन ये बटन चेंज हो जाएगा, इंस्टॉल नाउ से एक्टिवेट लिखा आ जाएगा यहाँ पर, देन मुझे क्लिक करना है एक्टिवेट पर एंड दैट्स हाउ Elementor प्लगइन मेरी वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो इंस्टॉल फॉर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ प्लगइन ऑन योर वेबसाइट। उसके बाद आता है प्लगइन एडिटर। प्लगइन एडिटर को अभी हम छोड़ देंगे, दिस इज एडवांस, अभी हमें इसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो विल जस्ट गेट बैक टू
दिस सेक्शन, वी विल जस्ट गेट बैक टू दिस सेक्शन एंड अभी हम देखते हैं यूजर्स क्या होते हैं। तो यूजर्स के अंदर बेसिकली ऑल यूजर्स के अंदर जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर किसी कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी है और एक ही वेबसाइट पर उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हर पर्सन को एक अलग राइट्स दिए जाते हैं, हर एक पर्सन को एक अलग परमिशन राइट्स दिए जाते हैं कि एक पर्सन एक वेबसाइट के ऊपर ऐसा काम कर सकता है। तो वो सपोजिंगली कोई एक पर्सन एक वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है, तो वो वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउट चेंज नहीं कर सकता। तो कोई पर्सन ऐसा होता है जो उस आर्टिकल को अप्रूव कर सकता है, तो लिखा किसी और ने, अप्रूव किसी और ने किया। तो ये सारे रूल्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं और उन यूजर्स को ऐड करते हैं यहाँ पर। तो जितने भी यूजर्स आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए ऐड करोगे, वो सभी यूजर्स आपको ऑल यूजर्स के सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब देखते हैं अगर हमें कोई यूजर ऐड करना है तो हम ऐड कैसे करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से रोल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे उसका यूजर नेम क्रिएट करते हैं, फिर एक उसकी ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, उसको फर्स्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं। तो यूजर जो भी होता है इसका सारी डिटेल आप ही क्रिएट करते हो और आप ही उस यूजर को सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है, आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। एंड रोल्स के अंदर अब क्या होता है, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। सो सबसे पहले तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बेसिकली जो आप हो, जिसने वेबसाइट क्रिएट करी है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा रोल होता है, या बोलते हैं ना ऊंचा ओहदा होता है, तो सबसे ऊंचा रोल होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप आर्टिकल भी लिख सकते हो, आप डिज़ाइन लेआउट भी चेंज कर सकते हो, आप कुछ डिलीट भी कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी एडिटर क्या होता है। एडिटर का कंट्रोल डायरेक्टली आपकी वेबसाइट की पोस्ट पर होता है। एन एडिटर कैन एडिट, डिलीट और ऐड एनी न्यू पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है। कोई भी पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और नई पोस्ट भी ऐड कर सकता है। ठीक है। जो ऑथर होते हैं, इनका भी कंट्रोल वैसे पोस्ट पर ही होता है, बट दे कैन एडिट, डिलीट और ऐड न्यू पोस्ट विद देयर ओन ऑथर नेम। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे 4 से 5 ऑथर्स हैं, तो अगर जो एक ऑथर है वो अपने ही नाम से जो उसने पोस्ट क्रिएट करी है उसको डिलीट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है और अपने ही नाम से नई पोस्ट को ऐड भी कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर होते हैं कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर्स आपकी वेबसाइट पर पोस्ट क्रिएट तो कर सकते हैं बट पब्लिश नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ऑप्शन बिकॉज मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि वेबसाइट ऑनर्स कंटेंट के पब्लिश होने से पहले उसे खुद प्रूफ रीड करके चेक करना चाहते हैं कि कंटेंट सही तो है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही लिखा है ना। तो आप अगर कोई ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे आपको जो भी आपका राइटर है उनके कंटेंट को पहले एक बार प्रूफ रीड करना है, चेक करना है कि हाँ उसने कंटेंट ठीक लगा है, तो आप उसको कंट्रीब्यूटर का रोल प्रोवाइड कर सकते हो। सब्सक्राइबर इसे आप स्किप कर सकते हो, इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती और इसे हम यूज़ भी नहीं करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। जब आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो तो ये 4 रोल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है जी। प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हो कि आपका अपनी प्रोफाइल कैसी दिखे। ठीक है। उसमें आप अपना नेम, जैसे यूज़र नेम तो सेम ही रहेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बाकी सारी डिटेल्स, ईमेल वगैरह, वो सब कुछ आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। इन्फो डाल सकते हो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपना कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं टूल्स के अंदर आप बेसिकली अगर आपने इस वेबसाइट का डेटा अगर आपको किसी और वेबसाइट पर मूव करना है तो आप एक्सपोर्ट फीचर का यूज़ कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आपके पास कोई और की वेबसाइट है, अगर आपको उस वेबसाइट के कंटेंट को, उस वेबसाइट के डेटा को अपने इस वेबसाइट के अंदर मूव करना है तो आप इंपोर्ट फीचर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अभी के लिए दिस इज़ अ बिट एडवांस थिंग, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर इतना ध्यान देने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि टूल से आप ये चीज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं सेटिंग्स के अंदर आप क्या करते हैं। सेटिंग्स के अंदर लेट मी क्लिक ऑन जर्नल फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी साइट का टाइटल देना है। तो जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं तो हम टाइटल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया एंड बाइंग गाइड। और टैगलाइन के अंदर इसको थोड़ा और ज़्यादा वर्ड्स इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इंडिया aims at
listing out the best refrigerators in India. And also it features a comprehensive buying guide. ठीक है जी, आप इसको अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो। अभी मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने लिख दिया है, जस्ट टू शो यू कि हमें ये चीज़ें लिखना मैंडेटरी होता है और हमें ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। एंड मेक श्योर कि आपकी अगर टाइटल में और टैगलाइन में अगर आपका टारगेट कीवर्ड होगा विच विल बी बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, तो हमें एसईओ में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए हम अगर दोनों में कीवर्ड्स भी डाल देंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यू कैन कीप दिस थिंग वाइल राइटिंग बोथ ऑफ दीज इन योर माइंड। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको और कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ठीक है, आफ्टर देन क्लिक ऑन राइटिंग में भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट कीप इट डिफ़ॉल्ट। देन उसके बाद यहाँ पर भी आपको सिर्फ ये फुल टेक्स्ट से इसको समरी में चेंज कर देना है। ठीक है, ये हमें आगे जाके हेल्प करेगा। And then click on save changes, and then let's see discussion में भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। Now let's see मीडिया के अंदर भी we have to keep it default only, so there's nothing to change. Then permalinks में हमें यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। ये अगेन हमें एसईओ में हेल्प करेगा। अगर हम इसको पोस्ट नेम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एसईओ में मुश्किल आएगी हमें। तो वी हैव टू सेलेक्ट द पोस्ट नेम ओवर हियर एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। प्रीवियस के अंदर भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो यहाँ पर हमारा दिस इज़ द टूर 1 ऑफ वर्डप्रेस बैकएंड पैनल। सो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का बैकएंड टूर 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपीयरेंस के सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम इस सेक्शन के एलिमेंट्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड के लेआउट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर कंप्लीटिंग मोर देन हाफ ऑफ दिस कोर्स। देयर आर जस्ट फ्यू मोर वीडियोज टू गो टू टर्न यू इनटू एन एफिलिएट मार्केटर। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।